Hello, all my dear Rajeshwarians. How are you all, guys? I hope all of you are fit and fine. Today we shall proceed to the poem Amanda, which would be the last poem before we conduct the MCQ test in the first week of August, as it is scheduled by the school management. The name of the poem Amanda, and it's page number 61. Name of the book, as usual, First Flight. First Flight, sorry. हाँ गए. We know that every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or the other. ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत खाओ. टोका टोकी होती है ना सभी बच्चों के साथ. और कोई भी बच्चा टोका टोकी पसंद नहीं करता है. हाँ? Nobody likes that. Nobody bites nagging. इंग्लिश में इसको nagging बोलते हैं. है ना, नुक्ताचीनी. आपके काम में गलती निकालता. सभी लोग, स्पेशली पेरेंट्स आर सो गुड एट डूइंग दिस सच थिंग्स, है ना. एंड उनके ऊपर टीचर्स आपके हर काम में, बेटे ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं करते, डोंट डू लाइक दैट, इट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. चलिए, सो इट इज अबाउट अ स्मॉल गर्ल whose name is Amanda. Before we proceed, let me read out the whole poem for you. और आपसे भी निवेदन है कि ये पोएम बार बार पढ़ें भाई लोगों, बहन लोगों. चलिए, आप सभी लोग पेज नंबर 61 निकालेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द टीचिंग. In this case, only the reading of the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. वे ब्रैकेट्स में जो है ना, वो सोचती है ऐसा, और जो बिना ब्रैकेट से उसको कहा जाता है. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. फिर से ब्रैकेट शुरू होता है. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वापस आते हैं इंस्ट्रक्शंस जो मिल रहे हैं. नैगिंग मिल रही है अमांडा को, who is the heroine of a poem. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your ache, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? फिर से भाई ब्रैकेट में आ जाए. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop. अब फिर खत्म हो गया है वो सोच रही है, जो बार बार वो फ्लैशबैक में चली जाती है और बार बार उसको अपने पेरेंट्स, स्पेशली आई थिंक इट इज द मदर, हु इज गिविंग हर द इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली. स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I am nagged at you, Amanda. चलिए, इसके पहले हम आगे बढ़े, हम पोएट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा सा. The word poetry originates from a Greek word meaning to make. A poet is thus a maker, and a poem something that is made or created. कितनी अच्छी है. No single definition of poetry is possible, but some characteristics, features of poetry may be mentioned. Poetry has a musical quality with rhythm, pitch, meter,
and it may use figures of speech such as simile, and metaphor. While quite a few poems in this selection are in traditional forms, the unit also performs modern poems that are free from normal restrictions. Something I shall tell you about the poet. The poet Robin McLaughlin is an Australian author of books for children, and she writes children's and young adults fiction. Some of her famous books are Hating Alison Ashley and People Might Hear You. So these are the ones. We shall see it later about the poetess and her books. So students, let us watch a video clip on the poem Amanda. It is line by line. Okay, थोड़ी समझ आपकी भी बढ़ जाएगी अमांडा के बारे में. Please. So we'll continue. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम टाइटल्ड अमांडा रिटन बाय रोबिन क्लाइन। ये जो पोएम है हमें बताती है एक लिटिल गर्ल के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में। ये वो गर्ल है जिसे कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे बार बार कहा जाता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके पेरेंट्स के द्वारा, और मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर के द्वारा ये बात कही जाती है। लेट्स रीड द पोएम नाउ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नेल्स को मत बाइट करो, अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। बच्चे क्या करते हैं, अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटने लग जाते हैं, तो उसे कहा जाता है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने शोल्डर्स को, कंधों को मत हंच करो, मत रेज करो, मतलब कुबड़ बनाकर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये स्लाउचिंग बंद करो, मतलब बैड वे से बैठना बंद करो, लेजी वे से, आलसी तरीके से बैठना बंद करो और सीधा बैठ जाओ अमांडा। जब उसे ये बात कही जाती है तो जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ब्रैकेट में दे रखा है। तो ब्रैकेट में इसलिए दे रखा है कि अमांडा उस समय क्या सोचती है, अपने माइंड में उसके क्या चल रहा है। तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी। लैंग्वेड मीन्स रिलैक्स्ड, शांत। वो कहती है एक बिल्कुल शांत एमराल्ड सी है। एमराल्ड मतलब ग्रीन कलर का। वैसे एमराल्ड का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ग्रीन। तो वो कहती है एक रिलैक्स, शांत, ग्रीन कलर का सी है, समुद्र है। वेयर, जहां पर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मीन्स एलोन, अकेली, इनहेबिटेंट, निवासी, इज मी, वहां पर मैं हूं। समुद्र की इकलौती निवासी मैं हूं, और मैं क्या हूं, अ मरमेड, मैं एक जल परी हूं। मैं समुद्र में क्या हूं, जल परी, ड्रिफ्टिंग, और मैं मूव कर रही हूं स्लोली, धीरे धीरे, ब्लिसफुली, बड़े आनंद से। ये अपनी कल्पनाओं में वो सोच रही। फिर उसको कहा जाता है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपने होमवर्क को फिनिश कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम। क्या तुमने अपने रूम को टाइडी, साफ सुथरा कर दिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू क्लीन योर शूज, अपने शूज को भी क्लीन कर लेना अमांडा। तो उसके पेरेंट ये बात बोलते हैं, मदर उसकी ये बात बोलती है। मोस्ट प्रोबेबली ये हमें लगता है कि उसकी मदर ने ये बातें की हैं अपनी बेटी के साथ। तो वो क्या सोचती है बेटी आगे से, अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। वो सोचती है कि मैं अनाथ हूं। ऑर्फन मीन्स अनाथ, मैं क्या हूं, अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं घूम रही हूं स्ट्रीट में, गली में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। मैं पैटर्न बना रही हूँ, डिजाइन से बना रही हूँ, सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, विद माई हस्ट, साइलेंट, चुपचाप, जिसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, ऐसे बेयर फीट के साथ, ऐसे नंगे पांव के साथ, मिट्टी पर
पाँव मेरे पड़ रहे हैं और मैं पैटर्न डिजाइन बना रही हूँ। और वो सोचती है द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है इज गोल्डन, वो गोल्डन है, सुनहरा है, बहुत अच्छा है। द फ्रीडम, और जो आजादी होती है इज स्वीट, वो बहुत मीठी है। मतलब वो ऑर्फन भी होने के लिए तैयार है, उसे कोई बार बार टोके नहीं, नैक नहीं करे। तो नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, फिर बोला जाता है डोंट ईट दैट चॉकलेट, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, याद करो अपने पिंपल्स को, मुहांसों को। अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरे को देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरी तरफ देखोगी अमांडा? तो वो फिर क्या सोचती है अमांडा? आई एम रेपिंजल, मैं क्या हूँ? रेपिंजल। आई हैव नॉट अ केयर, मेरे को कोई परवाह नहीं है। तो ये जो रेपिंजल वर्ड यूज किया गया है, ये एक स्टोरी से लिया गया है, जो एक फेरी टेल है। रेपिंजल क्या थी? एक लड़की थी जिसे एक विच के द्वारा, एक डायन के द्वारा एक टावर में कैद कर लिया जाता है। और उस टावर में कोई डोर वगैरह नहीं होता, बस ऊपर एक खिड़की होती है जहां पर वो कैद होती है, और वो हाई टावर होता है। और वो जो डायन है, वो जो विच है, वो उसके पास कैसे विजिट करती है रेपिंजल के पास। रेपिंजल के जो हेयर होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, तो वो जो विच है वो कहती है रेपिंजल लेट डाउन योर हेयर, अपने बालों को नीचे करो। और उस बालों को पकड़कर वो टावर पे रेपिंजल को विजिट करती थी। तो अब जो है ये क्या सोच रही है अमांडा कि आई एम रेपिंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं। लाइफ इन ए टावर, जो लाइफ है ना टावर में, इज ट्रैंक्विल, बिल्कुल शांत है, एंड रेयर, और मुश्किल से मिलने वाली लाइफ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और पक्का ही मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगी, नीचे नहीं गिराऊंगी। माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को मैं नीचे नहीं करूंगी। तो मतलब मैं अकेली रह रही हूँ, शांत रह रही हूँ, वो ऐसा सोचती है। फिर आवाज आती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, ये रूठना बंद करो जो तुम एकदम रूठ जाती हो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो? मूडी हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि मैं